بشیر میمن منی لانڈرنگ سمیت 3 مقدمات میں بے قصور قرار۔ بشیر میمن ایف آئی اے کو مطلوب نہیں۔ ایف آئی اے کی سیشن کورٹ میں رپورٹ جمع۔ تفتیشی افسر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ بشیر میمن ان تینوں مقدمات میں ملوث نہیں ہیں۔ تفتیشی افسر کا بیان قلم بند کر لیتے ہیں۔ سیشن کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ بشیر میمن منی لانڈرنگ سمیت 3 مقدمات میں بے قصور قرار۔ بشیر میمن ایف آئی اے کو مطلوب نہیں۔ ایف آئی اے نے سیشن کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ تفتیشی افسر کا یہ کہنا ہے بشیر میمن ان تینوں مقدمات میں ملوث نہیں ہیں۔ میری درخواست ہے بچی کو کراچی لایا جائے۔ والدہ دعا زہرا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میری بچی کو بلیک میل کیا جا رہا ہو، بچی پر دباؤ ڈال کر بیان دلوایا جا رہا ہے۔ بچی کے والدین پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو نے بچی کا نکاح کروا دیا، یہ ایک طریقہ سمجھا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ نکاح کے بھی کوئی ایویڈنس؟ ہاں، اور مجھے بتائیں نکاح بھی جعلی، کیونکہ جس مولوی نے کا نام یوز ہوا اس نے کہا میں نے تو یہ نکاح پڑھا ہی نہیں ہے۔ قانون میں ہے ہی نہیں 18 سال کے بچے سے کم کا نکاح ہونا۔ جتنے مرضی وہ گواہ کر لیں، لیکن سر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے نا، 10 دن سے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ سر بات یہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوا، حالانکہ نکاح ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے یہ دکھایا کہ نکاح غلط ہے۔ جو مولانا صاحب کا نام یوز ہوا نکاح خوان کا، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ نکاح پڑھایا ہی نہیں، تو ان کی ہر چیز فیک کے اوپر کھڑی ہے۔ اب وہ جو بچی کو بول رہے ہیں وہ زبردستی اس سے بیان لے کے وہ بولتی چلی جا رہی ہے۔ 10 دن اپنے پاس رکھی ہے بچی انہوں نے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہمارے اگینسٹ بیان نہ دینا، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ انڈر ایج سر بات یہ ہے کہ وہ بچی ان کے پاس ہے، اس سے زبردستی جو بیان لینا چاہیں گے وہ بولے گی۔ میں نہیں سر، پورا محلہ ڈینائی کرے گا اس چیز کو۔ سارے محلے کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی بچی کو کتنے پیار سے پالا ہے، سب بچیوں کو۔ اس بچی کی برتھ اس گھر میں ہوئی ہے، اب اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایٹ دی اینڈ میں ایجنسیز کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرا پورا تعاون کیا اور ابھی بھی کر رہی ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف سندھ، سب کا میں تعاون کا شکریہ ادا کروں گا۔ کل میرے پاس پولیس کا میں شکریہ ادا کروں گا، ایس ایس پی صاحب کا اسپیشلی، وہ میرے لیے بہت انہوں نے کام کیا، اور ابھی بھی میں ان سے امید رکھوں گا کہ آئندہ بھی کریں، کیونکہ اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ بچی کو یہاں لایا جائے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے اور ایک فیئر انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ کیا ہوا۔ بہت مہربانی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کراچی میں دعا زہرا کے والدین نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نکاح خواہ نے کہا کہ میں نے نکاح پڑھوایا ہی نہیں، بچی کو جو بول رہے ہیں وہ بول رہی ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ میری درخواست ہے کہ ہماری بچی کو کراچی لایا جائے، چاہے اسے چائلڈ پروٹیکشن میں رکھا جائے۔ دعا زہرا کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ لاہور کی سیشن کورٹ میں دعا زہرا کی ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست، عدالت نے لاہور پولیس اور دیگر فریقین کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ پسند کی شادی کی کسی نے اغوا نہیں کیا، لڑکی کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے، والد سمیت دیگر رشتہ داروں کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں دعا زہرا کی ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست، عدالت نے لاہور پولیس اور دیگر فریقین کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کچھ دیر بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں بجلی کے شارٹ فال، لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں بند پڑے پلانٹس کو فعال بنانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کچھ دیر بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں بجلی کے شارٹ فال، لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں بند پڑے پلانٹس کو فعال بنانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کے حلف نہ لینے پر دوبارہ درخواست پر سماعت ہو گئی۔ عدالت نے درخواست پر سماعت دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وفاقی حکومت سے ہدایات لے کر پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو عدالت کی معاونت کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ حمزہ شہباز کی حلف نہ لینے پر دوبارہ درخواست پر سماعت، عدالت نے درخواست پر سماعت دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔
ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। आईन पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देता है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी है और इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। रेड जोन को सील कर दिया गया है, जबकि दफ़ा 144 पहले से ही नाफिज है। सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से मजीद बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा इस हवाले से। जी, इलेक्शन कमीशन के बाहर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने अपना एहतजाज करना था, जिसकी कॉल जो है दिन 12 बजे के लिए दी गई थी कि कवर्ड मार्केट का जो रास्ता है वहाँ से ये रेड जोन में दाखिल होंगे। गुज़श्ता रात जो है वफाकी पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक ये भी कहा गया कि 2 माह के लिए जो है वो दफ़ा 144 नाफिज की गई है पूरे रेड जोन के अंदर। ना सिर्फ रेड जोन के अंदर बल्कि इसके बाहर का जो 1 किलोमीटर का रेडियस है उसके अंदर भी दफ़ा 144 नाफिज है, जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते। ताहम 12 बजे का वक्त दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस यहाँ पे वहाँ पर आकर एहतजाज करेंगे जो रेड जोन के अंदर वाक़ है। जो पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया उन्होंने गुज़श्ता रात ही कंटेनर्स लगा के जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया था। सिर्फ एक रास्ता जो मार्गला रोड का रास्ता है उसको एंटर होने के लिए और वहाँ से एग्ज़िट के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो जाम है। 750 पुलिस एहलकारों को जो तैनात किया गया है इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द। इसके अलावा जो रेंजर्स की नफरी है उनको भी यहाँ पर एंटी रॉयट किट्स के साथ जो है वो ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ मलिका इमारतें हैं वहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। 12 बजे का वक्त है। इंतज़ामिया ने बारहा कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनसे बात की जाए और उनको ये कहा जाए कि यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है, रेड जोन के अंदर एहतजाज की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो बज़िद हैं जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं कि वो रेड जोन के अंदर ही एहतजाज करना चाहते हैं। ये जो दफ़ा 144 नाफिज की गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दौरे हुकूमत था उसके दौरान ये दफ़ा 144 नाफिज की गई थी और 2 माह के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था जो अभी तक जारी है। तो आज उसी की खिलाफ वर्जी अगर यहाँ पर एहतजाज होता है तो तहरीक इंसाफ की जानिब से देखने में आएगी कि यहाँ पर रेड जोन के अंदर एहतजाज किया जाएगा। दूसरा मैं आपको बताते चलूँ कि जितनी भी अहम इमारतें हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है, रेंजर्स की नफरी को तैनात किया गया है। 4 दाखिली रास्ते हैं जिसमें सरीना चौक, मैरियट, इसके अलावा नादरा चौक और डी चौक जो है इनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, जबकि बरी इमाम से आने वाला जो रास्ता है 5th एवेन्यू का उसको भी बंद किया गया है। सिर्फ मार्गला रोड का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, जिसमें जो सरकारी मुलाजमीन और जो आमदोरफ्त जिन्होंने रेड जोन के अंदर करनी है उनको इधर आने की इजाज़त है। इसके अलावा आम लोगों का दाखिला जो है वहाँ वो उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। जी कमरुल मुनव्वर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में माह मुकद्दस में शहरियों को रिलीफ और सब्सिडी की फराहमी के लिए लगाए गए सस्ते रमज़ान बाजारों में फलों, सब्जियों समेत दीगर अशिया ओपन मार्केट से भी महंगी फरोख्त की जाने लगी, जिससे शहरी भी परेशानी का शिकार हैं। इसी से मुतल्लिक रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को रिलीफ और सब्सिडी की फराहमी के नाम पर लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ारों में महज आटा और चीनी सस्ती, मगर फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें ओपन मार्केट से भी ज़ायद मुकर्रर कर दी गई। बाग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो सस्ती ना हो, फिर भी कंट्रोल रेट तो हो ना। अगर आपने कंट्रोल बाजार लगाए हुए हैं तो उनमें थोड़ा फ़र्क होना तो चाहिए। यहाँ से चंद कदम पे जाए वही चीज़ आपको 50 रुपये कम रेट पे मिल रही है। इस बाज़ार लगाने का मकसद क्या है? ताकि आवाम को रिलीफ मिले, ना कि आवाम को लूटा जाए। गवर्नमेंट का इतना खर्चा, इतने लोग ड्यूटियों पे लगाए हुए हैं, उनका क्या फ़ायदा? दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हकाइक के बरक्स दावा करते हैं कि रमज़ान बाज़ारों में शहरियों को रिलीफ फराहम की जा रही है। आटा जो है वो 400 रुपये पे,
बेचा जा रहा है। और इसके साथ साथ घी पे भी सब्सिडी लगाई है, जो भी मार्केट रेट घी का चल रहा है उससे 50 रुपये सस्ती पे बेची जा रही है। और जहाँ तक हमारी एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का ताल्लुक है, उस पे जो 13 अशिया हैं उस पे तो पहले दिन से अब तक सब्सिडी दी जा रही है। शहरी कहते हैं कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दामात उठाए जाए ताकि शहरी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शहरियों को रिलीफ और सब्सिडी के नाम पर लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ारों में फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें ज़ायद मुकर्रर कर दी गईं, जिसकी वजह से शहरी इन रमज़ान बाज़ारों की बजाय ओपन मार्केटों से ख़रीदारी को तरजीह देने लगे हैं। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। दूसरी जानिब कोयटा के शहरियों को महंगाई का एक और झटका। 24 घंटों के दौरान फ़ी किलो घी और तेल 13 रुपए तक मजीद महंगा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान से। जी, महंगाई का जिन किसी भी तरह किसी के भी काबू में नहीं आ रहा। जो जो दिन गुजर रहे हैं वैसे महंगाई का जो तूफ़ान है वो आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए जो आम चीज़ें ख़रीदने बड़े मुश्किल है। कोयटा की जो मार्केट है यहाँ देखने में ये आ रहा है कि एक दिन के दौरान जो है दर्जा दोयम के जो घी हैं और ऑयल जो है उनमें जो है इजाफा हो गया है और तकरीबन 13 रुपये तक इजाफा हो गया एक दिन में। इसी तरह जो दूसरी ब्रांड्स के ऑयल हैं उनमें 10 रुपये पर लीटर जो महंगा कर दिया गया है। जो दुकानदार के हैं उनका ये कहना है कि उनको कंपनी की तरफ जो रेट्स मिलते हैं वो कन्फर्म दिन में 3-3, 4-4 वाला रेट बढ़ते हैं। हर दिन नया रेट आता है। सुबह आते हैं तो नया रेट होता है, शाम को जब जाते हैं वो अलग सा रेट होता है। जो आम सारिफ ख़रीदने आ रहा है उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जितनी उनकी आमदनी इतनी नहीं बढ़ रही, जिस लिहाज से यहाँ पे रेशो से जो है महंगाई बढ़ रही है। और अब 1 किलो घी ख़रीदना भी उनके लिए बड़ा महंगा हो गया। जो पहले 5 किलो वाला पैकेट घी का ले जाते थे, अब वो 1 किलो वाला पैकेट जो है घी का ले जा रहे हैं। जो 1 किलो वाला घी का पैकेट घर के लिए इस्तेमाल के लिए ले जाता था, अब वो आधे किलो वाले पे आ गया है। इस कदर महंगाई बढ़ गई है। तमाम का यही मुतालबा है कि हुकूमत इन तरह के जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे घी वगैरह इनको कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करें। जी। सिंध हाउस पर हमला केस, पीटीआई के 2 रुकने कौमी असम्बली गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर MNAs को पकड़ा गया है। गिरफ्तार होने वालों में पीटीआई के MNAs फहीम खान और अताउल्लाह शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी है। सिंध हाउस पर हमला केस से मुतल्लिक अपडेट आप तक पहुँचाएँ। पीटीआई के 2 रुकने कौमी असम्बली गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर MNAs को पकड़ा गया है। गिरफ्तार होने वालों में पीटीआई के MNAs फहीम खान और अताउल्लाह शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी है। गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। सिंध हाउस पर हमला केस, पीटीआई के 2 रुकने कौमी असम्बली गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर MNAs को पकड़ा गया है। गिरफ्तार होने वालों में पीटीआई के MNAs फहीम खान और अताउल्लाह शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी और ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पीटीआई के 2 रुकने कौमी असम्बली गिरफ्तार किए गए हैं। सिंध हाउस पर हमला केस, पीटीआई के 2 रुकने कौमी असम्बली गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर MNAs को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में पीटीआई के MNAs फहीम खान और अताउल्लाह शामिल हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर सईद अब्बासी, बताइएगा इस हवाले से। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त जमानत पर समाअत के बाद फैसला सुनाया और ये करार दिया कि पीटीआई के 2 अरकान असेंबली जिसमें फहीम खान और अताउल्लाह शामिल हैं, इनको नामजद किया गया था उस मुकदमे में जो सिंध हाउस पर हमला किया गया था और थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने इसमें दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया था और ये मुल्जिमान अबूरी जमानत पर थे। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो अदालत को बताया गया कि इन मुल्जिमान ने सिंध हाई कोर्ट पर हमला किया और इसमें वहां पर तोड़ फोड़ में मुलव्वस हुए और उसके शवाहिद मौजूद हैं और बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं। लिहाजा इनके खिलाफ ठोस शवाहिद हैं कि इन्होंने हल्ला बोला और एक अहम सरकारी इमारत पर और एक अहम जो इमारत है सरकारी उसके ऊपर हमलावर हुए अपने साथियों के हमरा। लिहाजा इनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। लिहाजा इन्हें गिरफ्तार करना है और दीगर मुल्जिमान से मुतल्लिक भी तफ्तीश करना है। लिहाजा इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाए। ताहम इनके जो वकला थे मुल्जिमान के, दोनों MNAs के, उन्होंने मुखालफत की और ये कहा कि मुल्जिमान का कोई ताल्लुक नहीं था और ये वहां पर सिंध हाउस में दाखिल होना चाहते थे जहां पर उनके लिए रुकावटें खड़ी की गई। तो इन्होंने वहां पर अंदर जाने के लिए कोशिश की जिस दौरान ये हाथापाई हुई, लेकिन दीगर लोगों ने वहां पर हमला किया था। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरखास्तें जमानत की मुस्तरद कर दी हैं अबूरी और दोनों मुल्जिमान को हाई कोर्ट ने जमानत मुस्तरद कर दी और गिरफ्तारी में लाई गई है। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।
वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के सिलसिले में अपनी दरख्वास्त की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर्द मैरी या खिंचाव में डाल दिए। चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात मुतासिर किए, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारे ताल्लुकात मुतासिर किए, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को मुतासिर किया और अमेरिका के सदर की फ़ोन कॉल के लिए कशकोल लेकर एक फ़ोन कॉल का सवाल है बाबा, जिस तरह इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान की बेइज्जती की है किसी ने आज तक वैसी बेइज्जती नहीं की। इसी तरह खलीजी ममालिक से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात को सर्द मैरी में धकेल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये किसका एजेंडा था? वो लोग जो फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए, ममनुआ फंडिंग के ज़रिए इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाए, उन्होंने इमरान नियाज़ी के हाथों पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद किया। 4 साल पाकिस्तान के हर शोबे को सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया और अब अपने 4 साल की तबाही का 4 दिनों में हमसे हिसाब मांगते हैं। कोई शर्म होनी चाहिए हुकूमत साबका के तर्जुमानों को। आज सारी कौम जानती है कि जो कांटे आप बखेर के गए हैं उनको पूरी कौम ने चुनना है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को इन कांटों से साफ भी करेंगे और इसे गुलो गुलजार भी करेंगे। इस मुल्क में दोबारा तरक्की के फूल खिलेंगे और जो नालायकी इमरान खान मुल्क को देकर गया है उस नालायकी को पाकिस्तान स्पीड से बदलेंगे। आपने इस्लामाबाद में देखा कि 16 अरब रुपए का मंसूबा 4 साल से ज़ाय हो रहा था। 4 साल से इस्लामाबाद मेट्रो मंसूबे के ऊपर गर्द डल रही थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा था। इमरान नियाज़ी को आवाम की फलाह का कोई ख्याल नहीं था और जब हुकूमत बदली तो वही मंसूबा जो 4 सालों में न चल सका 5 दिन के अंदर ऑपरेशनल हो गया। सिर्फ ये एक मंसूबा फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है कि नालायकी और काबिलियत में क्या फ़र्क होता है, नाअहली और अहलियत में क्या फ़र्क होता है। आज अब इमरान नियाज़ी कोशिश कर रहा है कि उसकी करप्शन पे सवाल ना पूछे जाएं। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलना इमरान नियाज़ी का ब्लैक मेलिंग हथकंडा है। इमरान नियाज़ी हिटलर का शागिर्द है और हिटलर की सियासत को पाकिस्तान में नाफिज करना चाहता है। जिस तरह हिटलर ने जत्थों के ज़रिए अपने मुखालफिन पे हमले कराए, जर्मनी के इदारों पे हमले कराए ताकि उसका रास्ता साफ हो सके, इमरान नियाज़ी भी आज अपने जत्थों के ज़रिए कहीं सोशल मीडिया पर और कहीं सड़कों पर इदारों पर हमले करके चाहता है कि उसके खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई रुक सके। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो? अगर इमरान नियाज़ी तुम्हारा हाथ साफ है तो फॉरेन फंडिंग का हिसाब दो, रसीदें दो। पिछले 7 सालों से कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को रोके हैं। हाई कोर्ट ने लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाके जी हाई कोर्ट को रोके हैं। क्या शफाफियत है? किधर है मिस्टर ईमानदार? अगर इमरान नियाज़ी साहब आपका दामन साफ है तो आओ आके रसीदें दिखाओ और साफ हो जाओ। लेकिन 7 सालों से करोड़ों अरबों रुपए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का खाया हुआ है उस पर इमरान नियाज़ी राजदारी के लिए, उसकी गिरफ्त से बचने के लिए मुसलसल राह फरार पर है। और आज इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलने का भी मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा सके।
मुझे इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि हमारे इदारे इस ब्लैक मेलिंग के नतीजे में फैसले नहीं देंगे बल्कि आइन और कानून के रोशनी में फैसले देंगे। इसी तरह जो तोहफे हैं, फॉरेन गिफ्ट्स हैं, तोशाखाना केस है, उसमें भी इमरान नियाज़ी भागता मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कोई इतना हल्का, कोई इतना छोटा वज़ीर आज़म नहीं आया जिसने बरादर मुल्कों के तोहफों को बाज़ारों में बेचा हो और जेबें गर्म की हों। आप किसी की शख्सियत इससे अंदाज़ा कर लें कि जो शख्स इंतहाई बरादर मुल्क के तोहफे जो उसको भाई बना के दिए गए हों उनको भी बाज़ार में बेच के अपनी जेब गर्म कर सकता है, तो वो किसी और चीज़ का सौदा करने में कितनी देर लगाएगा। इसी तरह जो स्कैंडल इनके माफियाज के ज़रिए चीनी में, आटा में, दवाइयों में, LNG में, वो जीपों की इंपोर्ट के अंदर अपने प्यारों को 10,000 जीपें इंपोर्ट करने के परमिट दिए, यानी कि जो नॉकडाउन जो पाकिस्तान में असेंबल गाड़ियां होती हैं उन पे ज़्यादा ड्यूटियां और जो असेंबल्ड गाड़ियां मंगाई गई उन पे कम ड्यूटी। करोड़ों अरबों रुपए के इसी तरह के घपले इनके जो हैं वो सब मंजर आम पर आएंगे और इमरान नियाज़ी साहब को करप्शन के एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। आज पाकिस्तान में जो इमरान नियाज़ी साहब खुद को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की आज़ादी के हीरो नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी के विलन हैं। चूँकि 20,000 अरब कर्ज़ों में पाकिस्तान पे लाद के गए हैं। पाकिस्तान में दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलन मस्क समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर का मालिक बन गया। ट्विटर ने अरबपति कारोबारी एलन मस्क को $44 अरब के मुआहदे में कंपनी की फरोख्त की तस्दीक कर दी। एलन मस्क ने कंपनी की मिल्कियत लेने का ऐलान करते हुए कहा कि आज़ादी इजहार एक फाल जमहूरियत की बुनियाद है और ट्विटर डिजिटल शहर का चौक है जहां इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए अहम मामूलात पर बहस होती है। ट्विटर के शेयर्स की कीमत में भी इजाफा देखने में आया है।